ضرب عضب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان چہروں کی ہے جو معصوم دکھتے ہیں مگر اندر سے خون آلود ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں راولپنڈی کے خفیہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں صرف مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ ایک لمبے کمرے میں 3 سایہ نما کردار خاموشی سے بیٹھے تھے۔ میز پر ایک جعلی ایرانی پاسپورٹ پڑا تھا، حسین مبارک پٹیل کے نام سے۔ یہ بندہ ہر بار نئے نام، نئی شناخت اور نئے راستوں کے ساتھ گھستا ہے۔ کرنل ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اب ہمیں اصل تک رسائی مل چکی ہے۔ کیپٹن علی نے دوسرے سرے سے کہا، سر، یہ کلبھوشن جادھو ہے، انڈین نیوی کا ریٹائرڈ کمانڈر جو اب را کا آپریٹو ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں اس کی موجودگی کی متعدد رپورٹس ملی ہیں۔ روزاد، جو اینک کے پیچھے سے خاموشی سے نوٹس لے رہا تھا، پہلی بار بولا، سر، کراچی کے لیاری اور ماڑی پور علاقوں میں اس کی مشتبہ سرگرمیوں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ مقامی بھتا خور گروپوں سے اس کا خفیہ رابطہ تھا۔ کرنل ہاشم نے نقشے پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھو، یہ وہ ٹریول روٹ ہے جو وہ ایران سے بلوچستان اور پھر کراچی کے بیچ بار بار استعمال کرتا رہا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ہر بار الگ جعلی شناخت، الگ موبائل، الگ کوڈ نیٹ ورک۔ کیپٹن علی نے فائل کھولی۔ سر، ہمارے پاس بلوچستان کی گوادر پورٹ پر ایک لوکل شکایت آئی تھی۔ چند دنوں سے ایک بظاہر تاجر وہاں کسی عرب بزنس مین کے بھیس میں آ رہا ہے۔ بعد میں پتا چلا وہ یہی بندہ ہے، اور اس کی ملاقات ایک ایرانی اسمگلر گروہ کے سربراہ سے ہوئی تھی۔ روحزاد نے درمیان میں کہا، اس بندے نے پسنی، جیوانی، تربت اور چمن کے علاقے استعمال کیے۔ ہر مقام پر مقامی رابطے، زیادہ تر ایسے لوگ جنہیں پیسہ دکھا کر خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کرنل ہاشم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ لمحہ بھر کو سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے، یہ صرف جاسوس نہیں، یہ فیلڈ آپریٹو بھی ہے، بم نصب کرنے، نیٹ ورک بنانے اور حساس معلومات لیک کرنے کے مکمل ہنر کے ساتھ۔ سر، یہ صرف ہماری سالمیت کا مسئلہ نہیں، بین الاقوامی سطح پر ایک دھماکہ بن سکتا ہے اگر ہم نے جلد بازی کی۔ کیپٹن علی نے وارننگ دی۔ کرنل ہاشم نے ہونٹ بھینچے، تمہیں اندازہ ہے، ایران کے راستے جعلی پاسپورٹ پر پاکستان آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان نے سرکاری سطح پر اس کی پردہ داری کی ہے، اور اگر ہم نے بغیر مکمل شواہد ایکسپوز کیا تو عالمی دباؤ ہم پر ہی آ جائے گا۔ روحزاد نے ایک تصویر دکھائی۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ جوانی کے ساحل پر یہ مشتبہ شخص کسی کو یو ایس بی ہینڈ اوور کر رہا ہے۔ بیچ پر ایک رات کے وقت اور کوئی کوڈ پیغام، غالباً نیٹ ورک ہینڈ آف ہو رہا ہے۔ کیپٹن علی نے گہری سانس لی۔ سر، ہم آپریشن سایہ کا اگلا فیز شروع کر سکتے ہیں۔ ابھی نہیں، کرنل ہاشم نے کہا، ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب وہ دوبارہ گوادر آئے گا، وہاں ہم اسے موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ روحزاد بولا، سر، میں نے مقامی مچھیروں کے نیٹ ورک کو الرٹ کر دیا ہے، وہ خاموشی سے رپورٹ کریں گے۔ کرنل ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، ایک نیوی کمانڈر مچھیروں کے ہاتھوں پکڑا جائے گا، تاریخ کو یہ سطر پسند آئے گی۔ کیپٹن علی نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، یہ مشن ہماری نسل کا سب سے بڑا سچ ہوگا، سر۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن میز پر پڑا وہ پاسپورٹ جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، میں ایک شخص نہیں، ایک سازش ہوں، رات کی گہرائی جی سے خاموشی سے بھریا ایک سازش ہو۔ چیلا 90 دیوار کے اندر قدم رکھتے ہی زرباک کو محسوس ہوا جیسے دیواروں کے پیچھے کچھ پاوا۔ یہ قلعہ بظاہر ویران دراصلہ ایک زندہ وجود تھا، ہر اینٹ میں ایک راز، ہر گزرگاہ میں ایک دھوکے۔ کپتان رفیق نے ہاتھ کے اشارے سے ٹیم کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا، پاندجی، حاجی لال دین اور زرباک میرے ساتھ، کالا چشمہ اور چپس والا بائیں سمت سے چلو۔ قلعے کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی پرانے وقتوں کی خوشبو اور جدید دور کے آلے آپس میں ٹکراتے محسوس ہوئے۔
दीवार पर नस्ब एक बोर्ड पर लिखा था ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र, माइंस बिफोर मिसाइल्स। पांडित जी ने पढ़कर सर हिलाया। ये तो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें खफिया इतलाआत मिली थी। ये दिमागों को निशाना बनाने का मंसूबा है। ज़रबाक ने कहा, यानी असल जंग अब बारूद से नहीं, दिमाग से लड़ी जा रही है। पिछले कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई ताला खुल रहा हो। सब ने अपनी पोजीशन संभाली। दरवाजा खुला और एक नहीफ शख्स बाहर निकला। सफेद लिबास, कमजोर कदम, मगर आंखों में चमक। मेरा नाम कबीर है। मैं ही वो हूं जिसने पहला वीडियो पैगाम ज़रबाक के लिए छोड़ा था। ज़रबाक ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। आप जिंदा हैं? कबीर ने थकी हुई आवाज में कहा, जिंदा हूं, मगर आजाद नहीं। इसी लम्हे कले के अंदर मौजूद एक और खफिया कमरा खिला, जहां 3 लोग कंप्यूटर्स के सामने बैठे थे। उनके चेहरों पर नकाब और हाथों में डिजिटल हथियार। यही वो लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती हथियार तैयार कर रहे थे। कप्तान रफीक ने आवाज दी, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। Just 7 years water. तुम्हारी चालाकी यहाँ खत्म होती है। एक नकाब पोश ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी चालाकी नहीं, तुम्हारी सोच खत्म हो चुकी है। पांडित जी ने जेब से वही राख निकाली। सच की आग में झूठ जलकर राख बन जाता है। और राख हुआ में फेंकी गई। जैसे ही फजा में बिखरी, नकाब पोश कांपने लगे। उनके होंठ खामोश हो गए। हाजी लाल दीन ने मजाही अंदाज में कहा, बाबा ठिस की कसम, अगर ये राख काम ना करती तो हम सब की पतलोन गेली हो चुकी होती। ज़रबाक ने आगे बढ़कर कंप्यूटर का मेन सर्वर बंद किया। ये निज़ाम अब खामोश रहेगा। तुम्हारा प्रोपेगेंडा खत्म। इसी लम्हे बाहर धमाका हुआ। काला चश्मा पठान दौड़ता हुआ आया। सर, बाहर की दीवार के पीछे हमें इसलहा की फैक्ट्री मिली है। कप्तान रफीक ने कबीर की तरफ देखा। यही वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। तुमने हमारा काम आसान कर दिया। कबीर ने आंखों में नमी लिए कहा, बस एक गुजारिश है, मेरे पैगाम को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना, ताकि कोई भी अपने जहन का गुलाम ना बने। रात गहरी हो चुकी थी। टीम बाहर आई। बैकग्राउंड में धमाके हो रहे थे। असलहा की फैक्ट्री को तबाह किया जा रहा था। खामोशी से एक तारीख लिखी जा रही थी। बाबा ठिस छत पर खड़े आसमान को देख रहे थे। आज के बाद ये जमीन फिर धोखा नहीं सहेगी। धुएं और धमाकों के दरमियान जब कला 9 के मुलबे से सूरज की पहली किरण टकराई, तो टीम के चेहरों पर इत्मीनान की हल्की सी झलक थी। बाबा ठिस ने कमर पर हाथ रखकर कड़कदार लहजे में कहा, अरे ओह काला चश्मा, मैंने तो कहा था कि कले के नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। काला चश्मा हिंसा, बाबा जी आपकी बात मान लें तो नोबल इनाम हमें मिल जाएगा। कप्तान रफीक ने ज़रबाक को करीब बुलाया। अब वक्त है अगले हदफ की तरफ बढ़ने का। ज़रबाक ने जेब से वो खफिया कोड वाला खत निकाला जो कबीर ने दिया था। इसमें एक नया मकाम दर्ज है, ठैरा जंक्शन। यहां दुश्मन का असल दिमाग बैठा है। टीम रवाना हुई। रास्ते में हाजी लालदीन और बाबा ठिस की जमलाबाजी से काफिला हिंसी में डूबा रहा। लालदीन ने कहा, बाबा जी आपने जो राख फेंकी थी, अगर थोड़ी सी और होती तो मैं अपने घुटने का दर्द भी खत्म कर लेता। बाबा ठिस गुस्से से, अरे ओ नमक हराम फकीर, ये राख किसी दवाखाने से नहीं आई, ये है मारिफत की खाक। जैसे ही टीम ठीरा जंक्शन पहुंची, एक पुराना मदरसा दिखाई दिया जिसके अंदर रोशनियों का हल्का सा हाला था। अंदर दाखिल होते ही एक नरम सी आवाज आई, खुशामदीद, तुम वही हो जिनका जिक्र था। सामने बैठा था एक ज़ईफ शख्स जिसका नाम था। ज़रबाक ने तारफ करवाया, हम पाकिस्तान की एक खफिया मुहिम पर हैं, दुश्मन की नफसियाती जंग का खात्मा करने आए हैं। पेड़ गफार ने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा। तुम्हारी आमद की खबर तो परिंदों ने दे दी थी, लेकिन ये जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती, ये रूह की लड़ाई है। इसी लम्हे मदरसे के पीछे एक दरवाजा खुला। 2 नौजवान लड़के अंदर दाखिल हुए।
एक के हाथ में फाइल, दूसरे के कंधे पर कैमरा। हम सहाफी हैं, यहाँ की असल हकीकत दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कप्तान रफीक ने चौंक कर कहा, यह तुम्हारी हिफाजत ये खत हो सकता है। सहाफी मुस्कुराया, लेकिन हम दिखाएं उसके कैसे? सहाफी मुस्कुराया, लेकिन अगर हम ना दिखाएं तो लोग जानेंगे कैसे? ज़रबाक ने पीर गफार से पूछा, क्या आप जानते हैं दुश्मन की अगली चाल क्या है? पीर गफार ने होले से कहा, दुश्मन अब चेहरों से नहीं, ख्यालात से हमला करेगा। वो तुम्हारे बच्चों के जहनों में दाखिल हो चुका है। बाबा ठिस ने ताली मारकर कहा, फिर तो हमें दिमागी वैक्सीन बनानी पड़ेगी। सब हंसे, मगर लम्हा संगीन था। सहाफी ने कहा, अगर हम सब मिलकर सच दिखाएं तो झूठ का पर्दा खुद ब खुद हट जाएगा। कप्तान रफीक ने सबको इशारा दिया, हमें रात तक यहां से अगले मकाम पर पहुंचना है। दुश्मन सूविया नहीं और ना हम। काफिला अगले हदफ की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इन सब के दिल में एक बात वाज़ेह थी, ये सिर्फ जमीन पर जंग नहीं, ये नजरियात की जंग है। और जब तक हक की आवाज गूंजती रहेगी, सच कभी हारेगा नहीं। रात की सियाही जैसे जैसे गहरी हो रही थी। काफिला टायरा जंक्शन से निकलकर एक वीरान पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। हल्की हुआ, दूर कहीं जंगली कुत्तों की आवाज और नीचे गहरी खाइयां। ज़रबाक ने रात की घप अंधेरे में आंखें सकेड़कर दूर एक जलती रोशनी को देखा। कप्तान रफीक ने सरगोशी में कहा, ये वही जगह हो सकती है, दुश्मन की जेर जमीन लेबॉर्ट्री। बाबा ठिस ने जमीन पर हाथ फेरा और नाक सिकोड़कर बोला, मुझे हिंदी की खुशबू आ रही है, लेकिन ये हिंदी नहीं, बारूद है। लाल देन ने मजाकन कहा, बाबा जी, आपका नाक तो रेडार है, कबड्डी का निशान, डिंडी का पलान सब सोंग लेते हैं। नीचे खाई के पार एक गुफा थी जिसे बज़ाहिर एक मामूली झोंपड़ी से ढका गया था। टीम ने रस्सों के जरिए नीचे उतरने की तैयारी की। हर रस्सी पर ज़रबाक के हाथ चलते गए। दिल में बस एक ही बात गूंजती रही, ये वक्त है कि वो चेहरे नकाब से बाहर आएं। अंदर दाखिल होते ही एक नीम तारीख सरनिंग शुरू हो गई। दीवारों पर पचीदा कोड्स, इध जले पोस्टर और खामोशी जो कानों में गूंजने लगी। इसी दौरान टीम का राबता एक और यूनिट हुआ जिसे ब्रावो 7 कहते थे। वायरली इस पर आवाज आई, यहां जीरो लेवल पर दुश्मन की नकल और हरकत है, मुमकिन तौर पर कोई बड़ा हमला प्लान हो रहा है। कप्तान रफीक ने ज़रबाक को इशारा किया, हमें स्प्लिट होना होगा, तुम बाएं जाओ, हम दाएं से कोड करते हैं। ज़रबाक, लाल दीन और बाबा ठिस बाएं सरनिंग की तरफ मुड़ गए। रास्ते में एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। एक कमरा जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड जमीन पर बिखरे थे। इन सब के चेहरे जलाए गए थे, सिर्फ नंबर बाकी थे। बाबा ठिस गुस्से से चीखा, यही वो जुल्म है जो वो हमारी पहचान के साथ करते हैं। ज़रबाक ने कार्ड्स में से एक उठाया। ये जाली शनाख्तें दहशतगर्दी में इस्तेमाल की जा रही थीं। अब खत्म होने का वक्त है। अचानक दीवार से एक साया निकला, लंबा, खामोश और चमकती आंखें। लाल देन की आवाज कांप गई, ये इंसान है या छलावा? ज़रबाक ने हिम्मत बांधकर पुकारा, कौन हो तुम? सामने आओ। वो साया बोला, मैं था एक उस्ताद, आज दुश्मन ने मुझे गुलाम बना दिया, लेकिन तुम अगर आए हो तो शायद कुछ सच अभी बाकी है। इसने एक खफिया रास्ता दिखाया जो लेबॉर्ट्री के अंदरूनी हिस्से तक जाता था। दूसरी तरफ कप्तान रफीक की टीम दुश्मन से भर चुकी थी। फायरिंग, चीखें और धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगे। ज़रबाक ने फैसला किया, हमें अंदर घुसकर सिस्टम बंद करना है, तभी ये जंग रख सकती है। जब टीम ने लेबॉर्ट्री में कदम रखा, वहां वो सब कुछ था जिसका इन्हें डर था। ड्रोन्स, जाली पासपोर्ट और एक दीवार जिस पर लिखा था मिशन जेड, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेटेड 2000 वक्सीड राइट। ज़रबाक ने चट्टान के पीछे से फायर किया और चलाते हुए कहा, हमारी कौम को कोई तोड़ नहीं सकता जब तक हम एक साथ हैं। इसी लम्हे एक रॉकेट फायर हुआ और बाबा ठिस ने अपनी चादर घुमाकर लाल देन को बचाया।
लालदीन हंसते हुए बोला, बाबा जी आप ना होते तो मैं आज कस्सा पारीना बन जाता। अभी तो कई कस्से बाकी हैं मेरे बच्चे। फायरिंग थम गई। कप्तान रफीक की आवाज वायरलेस पर आई, जीड मिशन न्यूट्रलाइज्ड, लेबॉर्ट्री बंद, दुश्मन फरार। लेकिन एक चाप चाप साया पीछे से सरसराता हुआ गुजरा। वो था असल दुश्मन जिसका चेहरा किसी ने अभी तक नहीं देखा। खंडर जैसी वो लेबॉर्ट्री अब खामोश हो चुकी थी। दीवारों पर बारूद की महक, फर्श पर गिरे कंप्यूटर पार्ट्स और दीवारों पर लिखे गए वो नारे जो नफरत के साए में पलते रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। मगर ज़रबाक की आंखें अब भी किसी को तलाश कर रही थीं। वो साया जो खामोशी से गायब हो गया था। कप्तान रफीक वायरलेस पर बोला, ब्रावो 7 रिपोर्ट दो, क्या सब महफूज हैं? आवाज आई, हमारे 2 बंदे जख्मी हैं मगर दुश्मन पीछे हट चुका है। हमने मशीन को डीएक्टिवेट कर दिया है। ज़रबाक ने एक जला हुआ नक्शा उठाया। इस पर चंद मखसूस जगहों के कोऑर्डिनेट लिखे थे, जिनमें से एक पर वाज़ेह लफ्जों में लिखा था, ऑपरेशन रवन, 2 days लेफ्ट। ज़रबाक ने कप्तान रफीक को देखकर कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ तमहीद थी, असल कहानी अब शुरू होगी। इधर कराची में एक दूसरी दुनिया पल रही थी। रोशनियों से जगमगाती सड़कों पर एक गाड़ी जिसमें बैठा था अपने फोन पर कॉल कर रहा था, जी मेहरबानो बीबी, सब तैयारी मुकम्मल है, बस हुक्म का इंतजार है। दूसरी तरफ आवाज आई, किसी को शक नहीं होना चाहिए, हमने जो बिछाया है वो जाल नहीं तकदीर है। साथ ही कमरे में हिंसी की आवाज गूंजी। ये था पांडा जांकाल, जिसने तेज मसालेहों की दीग पकाते हुए कहा, जब दुश्मन आएगा तो या तो जल कर जाएगा या मेरी बातों से हिंस कर मर जाएगा। बाबा ठिस जो कराची के एक वीरान चौराहे पर बैठा था, एक तोते से बात कर रहा था। ओ छूटे, आज कुछ अनूठा बता। तोता बोला, रावान नहीं मरेगा, रावान बदलेगा। बाबा ने पेशानी पर हाथ मारा, अब ये तोतरी फिलसफी हो गया है। उसी लम्हे लाहौर में रोहजाद ने एक कब्र के पास खड़े होकर खामोशी से आंखें बंद कर लें। इसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो जमीन पर रखी गई एक कब्र से मिली थी। लिखा था, जिन्हें तुमने मारा समझा वो जागते रहते हैं, जिन्हें तुमने भलाया वही तुम्हें याद रखते हैं। रूहजाद की मुट्ठियां भुंज गए। अब मुझे हर पर्दा चाक करना होगा, हर चेहरा बेनकाब करना होगा। वापस कराची, ज़रबाक ने इस नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। अंदरूनी सरकारी फाइलें, कॉल ट्रेसिंग और एक खफिया प्लान तैयार हो रहा था। ये प्लान था ऑपरेशन सैनेटा। कप्तान रफीक ने बताया, हमें पता चला है कि दुश्मन का अगला हदफ सिर्फ हमारी तनसीबात नहीं बल्कि हमारी पहचान है। लालदीन ने तंजिया अंदाज में कहा, पहचान को छुपाने वाले अब पहचाने जाएंगे। पिछले वाकये के बाद कौम के जज्बात भी भड़क चुके थे। मीडिया पर एक खातून एंकर चीख चीख कर कह रही थी, ये सिर्फ जंग नहीं, ये नजरियात का तसादम है। ज़रबाक ने कैमरे के सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहा, नकाबज़दा चेहरे अगर सच ना बताएं तो सच खुद उन्हें बेनकाब कर देता है। इसी दौरान एक नई एंट्री हुई। एक नौजवान लड़की जिसका नाम था इशाल और जिसकी आवाज़ खामोश मगर दिल पर असर करने वाली थी। वो ज़रबाक के पास आई और बोली, मैं भी तुम्हारे मिशन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ज़रबाक ने सवालिया नज़रों से देखा, तुम कौन हो? इसने पुरस्कून अंदाज में कहा, वो जिसे सब ने नज़रअंदाज किया मगर जिसे सब याद रखेंगे। बाबा ठिस ने हंसते हुए कहा, बच्चे हो या बिढ़े, अब सब इस खेल का हिस्सा हैं। ज़रबाक के कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक स्क्रीन जल रही थी जिस पर आस्ता आस्ता चेहरे उभर रहे थे। दुश्मनों के वो चेहरे जिन्होंने नकाब ओढ़कर दहलीज पार की थी, अब खुद बेनकाब हो रहे थे। तुम्हें लगता है हम तुम्हें नहीं देख रहे? ज़रबाक ने ज़ीरलब कहा और एक फाइल बंद की। इस पर लिखा था, इंटरनल एनिमी फेज 2। इधर लाहौर में रोहजाद रात के अंधेरे में किसी के पीछे चल रहा था।
वो जानता था कि इसके कदम अब किसी और राह पर मुड़ चुके हैं। जिस दरवाजे पर वो रखा उसके पीछे थी एक पुरानी हकीकत। दरवाजा खुला। तुम आ गए? एक धीमी आवाज गूंजी। हाँ, मगर सवाल अब भी बाकी हैं, रोहजाद बोला। तो फिर सुनो, सच वही होता है जिसे सब छुपाना चाहते हैं। कराची के साहिल पर मेहरबानो एक पुरानी फाइल खोले बैठी थी। इस फाइल में तस्वीर थीं, पुरानी, धुंधली, मगर हर तस्वीर के पीछे एक राज था। ये वो चेहरे हैं जो कहानी के आखिर में जिंदा रहेंगे और कुछ चेहरे बस धवां बनकर रह जाएंगे। बाबा ठिस एक पगलती मोमबत्ती की रोशनी में बैठा बड़बड़ा रहा था। ऊपर वालों ने कुछ नया चाल चली है। रावण को मारने के लिए अब राम नहीं, रघुबर्गी आएगा। लाल दीन अपनी मखसूस घटिया मुस्कुराहट के साथ बोला, बाबा जी, अब रावण मरेगा नहीं, बस भागेगा। इधर पंडित झांकाल ने एक कबूतर को हवा में छोड़ा जिसके पांव में बंधा था एक पैगाम। अगला इशारा तुम्हें पेशावर में मिलेगा, जहां ख्वाब सोते नहीं, जागते हैं। ज़रबाक ने अपने यूनिट को जमा किया। ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। इस बार हमारा हदफ एक शख्स नहीं बल्कि एक नजरिया है जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। कप्तान रफीक ने पूछा, नाम? ज़रबाक ने पर्ची पर एक लफ्ज लिखा, सहरबानो चौंक गई। मेहरबानो चौंक गई। ज़रबाक ने सर हिलाया। हाँ, ये वही है जिसे हमने बचपन में गमशदा समझा था, मगर वो कभी गम नहीं हुआ, वो छिपा रहा और अब लौटा है। साहिल एक ऐसा किरदार जिसका माजी उलझा हुआ और हाल पर असरार था। इसके बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि वो कभी हमारे साथ था और अब शायद हमारे खिलाफ। उधर लाहौर में रोहजाद और अशाल की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अशाल ने इसे एक पुराना कलम दिया जिस पर लिखा था, मोहब्बत वही जो खामोशी से लिखी जाए। रोहजाद ने कलम लिया और कहा, मैं उससे सच लिखूंगा, वो सच जो चीखने की बजाय दिल पर लिखा जाए। कराची की फजाओं में एक बार फिर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मेहरबानों के कमरे में तूफान बरपा था। उसने एक नकाब उठाया और कहा, अब मेरा असल चेहरा दुनिया देखेगी। पंडित झांकाल ने जोर से हंसते हुए कहा, और हम दिखाएंगे कि नकाबजदा सिर्फ दुश्मन नहीं, दोस्त भी होते हैं। बाबा ठिस ने एक बार फिर तोते से पूछा, ओ छोटे, अगला वार कौन करेगा? तोता बोला, जिसके पास लफ्जों का खंजर हो वही वार करेगा। लाहौर की फजा में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रोजाद छत पर खड़ा था, निगाहें आसमान पर और जहन अंदरूनी कश्मकश में उलझा हुआ। अशाल इसके पीछे आई। बारिश पसंद है तुम्हें? बारिश नहीं, उसकी खामोशी, जैसे कोई धुइया जा रहा हो अंदर से, रोहजाद ने आस्ता कहा, या जैसे पुराने राज फिर से जिंदा हो रहे हों। नीचे गली में अचानक शोर हुआ। एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। अंदर से दो आदमी निकले। एक के हाथ में एक खाकी लफाफा था। वो खामोशी से दरवाजे में डालकर चले गए। रोहजाद नीचे उतरा, लफाफा खोला। एक तस्वीर थी, एक जले हुए कागज का टुकड़ा और एक जुमला, जो नजर आता है वही सच नहीं होता। कराची में मेहरबानों ने ज़रबाक को खफिया जगह बुलाया। वहां एक दीवार पर कई तस्वीर और कागज लगे थे, नकाबजदा चेहरों के, मिशन की फाइलों के। ज़रबाक ने एक तस्वीर पर उंगली रखी, यही है हमारा अगला हदफ। मेहरबानों, यही साहिल? नहीं, उसके पीछे जो खड़ा है वो, ज़रबाक ने कहा और एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें एक बूढ़ा आदमी था, हंसता हुआ मगर आंखों में जहर। ये कौन है? नाम है मामा मिखन, अंदरून शहर का सबसे पुराना राबता, आजकल फिर फाल हो गया है। इधर पंडित झांकाल अपने नए तावीजों में मसरूफ था। लाल दीन नारे लगा रहा था, बाबा ठिस का टूट का नंबर 9, दुश्मन का मोबाइल बंद, दिमाग खराब और राज उड़ा दो आंधी में। बाबा ठिस ने कहकहा लगाया, पत्थर, अब दुश्मन की अकल बंद होने वाली है। लाहौर में रोहजाद ने अशाल से कहा,
मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अशआल ने नरमी से कहा, सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी हर रिश्ता, हर साया और हर धूप को पार करना पड़ता है। कराची में मेहरबानों ने साहिल की लोकेशन ट्रेस कर ली। ये बच नहीं सकता, उसने ज़रबाक से कहा, लेकिन सवाल यह है, हम इसे मारना चाहते हैं या जीना देना चाहते हैं? ज़रबाक ने लंबी सांस ली। हमें इसके सच की जरूरत है, खून की नहीं। बाबा ठिस के यहाँ इस रात एक नया मेहमान आया, गोरा चिटा, लेकिन बोली कुछ अजीब। मैं हूं बंदर लाल, पंडित जी का भांजा। लाल दीन ने सर पकड़ लिया। वो हो, अब एक और आया है नाचने। पंडित झांकाल ने फख्र से कहा, ये बंदर लाल जो है ना, दुश्मन को नचाना जानता है। रोहजाद को एक और खत मिला। मेहरबानो वो नहीं जो नजर आती है, इसके पीछे मत जाना, इसकी इंगलियां लर्जने लगे। रात का वक्त था। लाहौर के पुराने महले की सुनसान गलियों में खामोशी छाई हुई थी। एक घर के बाहर काले रंग की मोटरसाइकिल आकर रुकी। रोहजाद ने हेलमेट उतारा, आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी। हाथ में वही खत था जो किसी नामालूम ने भेजा था। मेहरबानो वो नहीं जो नजर आती है। अंदर दाखिल होते ही अशाल ने पूछा, तुम इस वक्त कहां थे? मेहरबानों के बारे में जानने गया था, लेकिन अब कुछ उलझ रहा है। रोजाद ने आहिस्ता जवाब दिया। अशाल ने कहा, तुम्हें इस पर शक है? नहीं, शक नहीं, लेकिन सच और धोखे के दरमियान फर्क धंधला हो चुका है। इधर कराची के एक गोदाम में ज़रबाक और मेहरबानो एक राज पर काम कर रहे थे। दीवार पर नक्शे, फाइलें और जासूसों की तस्वीर लगी थीं। ज़रबाक ने एक तस्वीर उठाई। ये शख्स रॉ का नेटवर्क चला रहा है। हमें ये खेल जीतना है, वरना पूरी कहानी उलट जाएगी। एक घस। मेहरबानों ने कहा। इसी लम्हे बंदर लाल, लाल दीन और पंडित झांकाल एक नई चाल के लिए इकट्ठे हुए। पंडित, अब की बार तावीज नहीं, ट्रिक चलाएंगे। लाल दीन, क्या मतलब? बंदरलाल को भीस बदल कर दुश्मन के कैंप में भेजेंगे। वो वहां नाचते नाचते उनकी जबान खलवा लेगा। बंदरलाल ने कहकहा लगाया, मैं नाचूंगा, लेकिन ऐसा कि राक्ट गिरेगा दिल पे। लाहौर में रोहजाद को एक पुराना फोन मिला जिसका नंबर डिलीट था। आवाज आई, तुम जिस पर एतबार कर रहे हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। कौन हो तुम? नाम नहीं, सिर्फ सच। और फोन कट गया। कराची में मेहरबानों ने साहिल को गिरफ्तार करने की तैयारी मुकम्मल की, मगर ज़रबाक ने रोका। ये आसान नहीं होगा, हमारे अपने ही जासूस हमें धोखा दे सकते हैं। तुम्हें मुझ पर शक है? ज़रबाक ने खामोशी इख्तियार की। आंखें सब कुछ कह गईं। इसी दौरान लाहौर में रोजाद ने अशाल से पूछा, अगर तुम्हें पता चले कि मैं कोई और हूं तो क्या तुम फिर भी साथ दोगी? अशाल, सच के साथ देना मेरा फैसला है, तुम्हारे नाम के साथ नहीं। उधर बाबा ठिस ने एक नया मंसूबा बनाया। अब की बार जादू नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। बाबा, आपने तो हमारी जान निकाल दी, दिमाग कहां से लाएं? बंदरलाल, तुम सिर्फ मेरे पीछे नाचना, बाकी मैं निपट लूंगा। शाम को कराची में ज़रबाक के हाथ एक और खत लगा। तुम जिसे बचाने जा रहे हो वही तुम्हारी तबाही है। ज़रबाक ने गुस्से से कागज फाड़ दिया। अब फैसला होगा धोखे का या सच का। लाहौर की सर्द सुबह, कहर में लपटी गलियां और खामोश दर दीवार। रोहजाद अपने कमरे में मेज पर बैठा वही खत घूर रहा था। मेहरबानो वो नहीं जो नजर आती है। इसकी आंखों में अब शक की जगह एक बेरहम फैसला झलक रहा था। नीचे अशाल ने आहिस्ता आवाज में चाय रखी और कहा, तुम्हें अब खुद फैसला करना होगा रोहजाद। या दिल की सुनो, या इन सच्चाइयों की जिनका साया तुम्हारे साथ चल रहा है। कराची में ज़रबाक खफिया अंडरग्राउंड सेल में कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था। वीडियो में मेहरबानो एक अनजान शख्स से बात कर रही थी। धुंधले चेहरे पर गहरी आवाज। अब वक्त आ गया है मिशन तब्दीली शुरू करने का। ज़रबाक के माथे पर बल पड़ गए। यही तो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन क्या मेहरबानो वाकई दुश्मन से मिली हुई है?
दूसरी तरफ बंदर लाल ने लाल दीन और पंडित झंकाल को एक खाली खीमे में इकट्ठा किया। तीनों की शक्लों पर छोटे बड़े जख्म पर जबान पर वही भूंडी मुस्कुराहट। पंडित, ये बारूद वाला धमाका तो लगता है हमारी शलवारों में हुआ। लालदेन, बाबा ठिस ने कहा था दाएं फेंको, हमने बाएं फेंका, अब गली के किते भी हमें सलामी दे रहे हैं। बंदरलाल, मैं कहता हूं अगली बार बगैर तावीज के निकलते हैं, कम अज कम खुद को ना उड़ाएं। वो तीनों कहे लगाते हुए बाहर निकले, लेकिन एक स्याह चश्मा पहने बंदा उन पर नजरें गाड़ चुका था। लाहौर में अशाल ने खामोशी से रोजाद को एक बंद लफाफा दिया। ये वो सीडी है जो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। रोहजाद ने प्लेयर में डाला, वीडियो चल पड़ी। एक अस्पताल और उसमें एक औरत मेहरबानों की हम शक्ल पर थकी हुई, खामोश और बस्तर पर कैद। वॉइस ओवर, असल मेहरबानों को अगवा किया गया, तुम जिसके साथ हो वो कोई और है। रोहजाद का रंग उड़ गया, तो जो मेरे साथ है वो नकली मेहरबानों है। कराची में जरबाक ने मेहरबानों से कहा, अगर तुमने एक बार भी झूठ बोला तो तुम्हारे खिलाफ वही सबूत इस्तेमाल होंगे जो तुमने खुद छुपाए। मेहरबानों खामोश रही, फिर आस्ता से बोली, कभी कभी सच बोलना भी गदारी बन जाता है। जरबाक पीछे हटा और बोला, अब फैसला तुम्हारा है। इधर बाबा ठिस, पंडित और बंदरलाल नए मंसूबे में मसरूफ थे। बाबा ठिस, हमें दुश्मन को ऐसा धोखा देना है कि वो हमें भकारी समझे और हम उसकी जैब काट लें, और अगर इसने हमें पहले ही पहचान लिया तो हम कहेंगे, जनाब हम तो भकारी भी नकली हैं। लाशों से भरी वीगन, छपे हुए हथियार और रॉ के 2 एजेंट जो खुद को सहाफी जाहिर कर रहे थे। अगली चाल खतरनाक थी, और इसी लम्हे मेहरबानों ने जरबाक को एक खत थमाया। ये है मेरी आखिरी सच्चाई, इसके बाद न मैं कुछ छुपाऊंगी, न तुम मुझे कुछ छुपाऊंगी, न मुझे बचाने की कोशिश करना। जरबाक ने खत खोला, पढ़ा और सिर्फ इतना कहा, सब कुछ बदल जाएगा। शहर की फजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान छुपकर सांस ले रहा हो। मारहबा अली दफ्तर में बैठा फाइलें उलट पलट रहा था। इसकी आंखें किसी खास इतला की तलाश में बार बार एक ही सफ़े पर रख जाते। ये बंदा यही है जो बार बार ईरान जाता रहा है, लेकिन नाम हर बार मुख्तलिफ। वो बड़बड़ाया। इसी वक्त दरवाजा खुला और कैप्टन अली अंदर दाखिल हुआ। सर, लाहौर से रिपोर्ट आई है, वही बंदा ईरानी पासपोर्ट पर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। मारहबा अली ने मेज पर जोर से मक्का मारा, अब ये खेल खत्म करना होगा। इधर रोजाद जो आम जिंदगी गुजार रहा था, बेखबर था कि इसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। इसके पास एक कोरियर आया जिसने लफाफा थमाया। लफाफे में सिर्फ एक इमारत की, जिसके नीचे चंद कोड्स दर्ज थे, और एक इधर, एक सर, अगर सच जानना है तो यहां पहुंचो। रोजाद ने बेयकीनी से तस्वीर देखी और ज़ीर लब कहा, यह कहां की जगह है? शाम को जब वो तस्वीर के बारे में सोच रहा था तो अचानक इसके कमरे की खिड़की से एक साए ने झांका। फिर धीमी आवाज में कोई बोला, सवाल पूछने से पहले जवाब तलाश करना सीखो। रोहजाद चौंक कर खड़ा हुआ, बाहर निकलकर देखा कोई नहीं था, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। तू वो नहीं जो समझ रहा है, और जो तो समझ रहा है वो तू नहीं है। अगले दिन मारहबा अली ने टीम को अलर्ट कर दिया, ये ऑपरेशन खफिया है। हमें शक है कि वही नेटवर्क जो वजीर सितान में इसलाह पहुंचा रहा था, अब शहर के अंदर मुतहर्रिक है। एक और कमरा, एक और दुनिया। भागते हुए पांडत भासन की दुकान पर एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ जिसकी दाढ़ी नाक से भी लंबी थी। पांडत ने घबरा कर पूछा, बाबा दस, आप यहां? बाबा दस ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारे चांदी वाले दांतों की जरूरत है, दुश्मन तुम्हारे दांतों में छुपा है। पांडत हंसा, बाबा जी आपको परांठा खिला दूं? बाबा ने संजीदगी से जवाब दिया, परांठा बाद में, अभी दुश्मन निकालना है। ये दोनों किरदार जहां माहौल को हल्का कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कहानी संजीदा मोड़ ले रही थी।
मारहबा अली ने नई रिपोर्ट खोली। सर वही चेहरा, लेकिन नाम फिरोजुद्दीन, अली मेहदी, रजवान नकवी, ये सब नकाब हैं। अली ने सर हिलाया, और हर नाम के पीछे एक तबाही की दास्तान है। इसी रात रोहजाद इस तस्वीर वाले पते पर पहुंचा, एक पुरानी बंद फैक्ट्री। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने एक पुरानी मशीन पर लाल बत्ती जल उठी। अचानक एक आवाज आई, तू देर से आया, पर अब वक्त तेरे पास कम है। रोहजाद ने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? साया आगे बढ़ा, सवाल बहुत हैं, जवाब एक, ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ आगाज है। सीन कट होता है। मारहबा अली, कैप्टन अली और पूरी टीम एक बड़े हाल में मौजूद हैं जहां नक्शे दीवारों पर चस्पा हैं। टारगेट करीब है, मगर अब हमें जल्दी करना होगी। आखिर में बाबा 10 पांडित से कहता है, इस बार दांतों से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। पांडित जवाब देता है, पहली बार तुमने कुछ अकल की बात की है। बाबा जी, कहानी जारी है।